all my friends, well-wishers, family, and my media friends over here. Thank you, Archana, for the great introduction. मेरे ख्याल से अर्चना जी आपने जो सवाल पूछा कि रियलिटी फिल्म और लॉकडाउन के ऊपर, मेरे ख्याल से मैं ही बना सकता है ऐसा सब्जेक्ट, मुझे लगता है जिस तरह का इसका थॉट है। और जब पहला लॉकडाउन हुआ तो हमने देखा किस तरह से लोग जूझ रहे थे, किस तरह से पीड़ा थी। वर्ल्ड ओवर में हमने देखा कि ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में था, पूरे विश्व में था। और मुझे लगता है कि उस वक्त पे और ये पिक्चर जो है ये पहले लॉकडाउन को दर्शाती है। पहले लॉकडाउन के जो स्टार्टिंग के 25-30 दिन होते हैं उसमें क्या क्या हुआ, और हमने बहुत इस पर रिसर्च किया। मेरे राइटर अमित जोशी, आराधना, हम लोगों ने बैठ के इसको 2-3 वर्जन लिखे और लॉकडाउन में लिखा है इसको। फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम में हमने इसको लिखा, हम लोग बहुत जूम कॉल करते थे। और उसके बाद कहीं जाके हम लोग को लगा कि इतने लोगों की पीड़ा थी, लेकिन हमको फिल्टर करके 4 स्टोरी चाहिए थी। है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि आज भी कुछ लोग से मैं बात करता हूँ, खास करके हमारा टीज़र आने से पहले लोगों ने बोला कि अच्छा इंडिया लॉकडाउन और तो लॉकडाउन फिल्म है। और जब टीज़र आने के बाद लोगों ने कहा यार हम तो भूल गए थे क्या लॉकडाउन था, लेकिन हम लोग को पूरा रिकैप हो गया। हालांकि उस दिन ट्विटर पे और सब जगह ट्रेंड हो गया, नंबर 1 ट्रेंड हो गया कि अब इंडिया लॉकडाउन हो रहा है कि नहीं। बाद में पता चला एक फिल्म कमिंग। So when it was Madhur and obviously lockdown stories, when you hear lockdown, all of us have gone through it, right? We've gone through highs and lows and different emotions. So the story actually brings out the untold stories of lockdown, which many of us would not have noticed because we live normal, absolute lives. The pain of people going back home, pain of people who are not able to kind of do their work because of various reasons, whether it's the Kamatipura worker, whether it's someone else. So I think lovely storytelling, amazing art which Madhurji brings in, and obviously the fact that it's a real relatable story. Everyone will connect. I believe not only in India, it should go all over the world, and all of us have gone through it. So definitely something we wanted to bet our bang on, so we are on. I have been assistant to Madhur sir. I have assisted him on Indu Sarkar. So it was my dream that has actually come true, that I worked with him. And he gave me the opportunity that I can go through with this. And it was, obviously, we all have gone through lockdown. But when we see it coming on the screen, it's really different because we are telling the stories which we don't come across in daily time. And in lockdown, what we had the best was that we spent time with our family members and we gave time to things that we could not in our daily lives. And these are stories which will tell us what actually happened around the world, other than the lives which we live in. साल से कोशिश कर रहे साथ काम करने की. He had offered me traffic signal, and it was right after Iqbal, and I had exams, and my parents had put a hard stop because of my education, and we couldn't work back then. So I'm happy that it's come to fruition now. It's not a film. India lockdown उस टाइम को ट्रिगर नहीं करता है, आपको उस टाइम को रीलिव नहीं करवाता है. इट्स अ ह्यूमन स्टोरी एंड इट्स अ रिमाइंडर ऑफ अ टाइम व्हेन पीपल केम टुगेदर ग्लोबली, who suffered globally and who survived globally. जो चारों stories हैं, they come from different walks of life, and it's a representation of human emotion that globally we all shared. So it's a reminder that life is unpredictable और कभी भी कुछ भी हो सकता है, but let's not lose human spirit. मैंने अंकुर 2 बीघा ज़मीन भी देखी मैंने, तो I think उनके struggles जानना, it was necessary for me to watch these films to understand the kind of struggles these characters live in and go through. I'm very happy to be here, and I really hope everybody enjoys the film and enjoys all our characters. And और श्वेता ने बहुत खूबसूरती से कहा कि ये फिल्म रिमाइंड हमें इस वक्त को रिमाइंड करने के लिए हम ये फिल्म नहीं दिखा रहे या बना रहे या आपको प्रेजेंट कर रहे. ये एक इमोशन था जो हम सब ने शेयर किया है.
हम सब ने सफ़र किया है, हम सब ने we really go into the depth of the migrant worker and the sex worker. I'm sure. India lockdown for me is a reminder of gratitude क्योंकि हम बहुत बुरे वक्त से गुजरे, उससे बाहर आए, बहुत कुछ सीखा और आज हम अपने पैरों पे वापस खड़े हैं. तो आई थिंक हमें ग्राउंडेड या रूटेड रखने के लिए एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए. मेरे लिए इंडिया लॉकडाउन वो रिमाइंडर है. एंड आई थैंक मधुर सर. Very few filmmakers see me in a different light and you did that. So thank you so much for Phoolmati. Phoolmati is very special. Smita Patil हर किसी एक्टर की आइडल है, मेरी भी है और उनके जीन्स मेरे साथ में थे हमेशा. तो मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत मज़ा आया. एंड आई थिंक आई होप अभी हम ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हम ट्रेलर देखेंगे, लेकिन आई होप आपको ट्रेलर और सिनेमा दोनों पसंद आए. My actors over here. हाँ, अपना ये अपना कहा गया अपना निरंजन, स्वात्विक, please come one second. One have a picture with the unit, yeah, team. Yeah, Parag, please come. स्वात्विक इधर आइए. आयशा जी आइए, प्लीज आइए. और कौन है यहाँ पे? रोहित कुलकर्णी, अमित जोशी जी. अरे क्या कर रहा है तू यार? हाँ, ऑल द टेक्नीशियन प्लीज कम. संजय डावरा जी का है, आजा एक ग्रुप फोटो लेंगे, आजा प्लीज. निरंजन का है. प्रदीप जैन जी प्लीज आइए, एक मिनट आइए. निरंजन आइए. वीरेंद्र सिप्पी प्लीज कम, एक मिनट, हैव अ पिक्चर. इंडिया लॉकडाउन हमारी फिल्म 2 दिसंबर को आ रही है ZEE5 पे और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ बिकॉज एज आई सेड दैट यू नो ये उस टाइम को ट्रिगर नहीं करता है, ऑडियंस को उस टाइम को रीलिव करने के लिए नहीं बोल रहा है, बट इट्स अ रिमाइंडर ऑफ अ टाइम वे ऑल ऑफ अस वी केम टुगेदर एज अ सोसाइटी टू फाइट दिस एंड वी सर्वाइव्ड इट. सम ऑफ अस सफर्ड, बहुत लोगों ने अपने लव्ड वंस खोए हैं, लेकिन एक सीख मिली है. और इसीलिए जो 4 कहानियाँ जो इस फिल्म में दर्शाए गए हैं वो बिल्कुल अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से हैं. एंड इट गिव्स अ पीक इनटू अ लाइफ, यू नो, लाइक एनी आर्ट फॉर्म, चाहे वो पोइट्री हो या पेंटिंग्स हो, इट्स डॉक्यूमेंट्स द टाइम दैट वी लिव इन. India lockdown documents that time of our lives where globally we were hit by pandemic. So like any other art form, I think cinema too is a it has that language of an art form where it's just a documentation of a time that all of us globally sort of shared. I'm very excited. मेहरुनिसा एक कमर्शियल सेक्स वर्कर है फ्रॉम कामाटीपुरा और उनका बिजनेस डायरेक्टली अफेक्ट हुआ था लॉकडाउन से, क्वारंटीन से. एंड उनकी और उनकी कम्युनिटी की जो कहानियाँ हैं जो शायद हमने काफ़ी कम सुनी और पढ़ी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, उसको हाईलाइट करती है. और हमने काफ़ी रिसर्च किया. द कॉस्ट्यूम दैट वर डन बाय शेफाली, आई थिंक आई हैड टू जस्ट स्लिप इनटू द कॉस्ट्यूम एंड आई बिकेम मेहरुनिसा. बट यू नो, मधुर सर बीइंग ही सच अ
such a brilliant filmmaker and he has that eye for detail. So the art directors, cinematographers, Madhur sir और मैं हम कामाटीपुरा गए थे and we met commercial sex workers and I interacted with them और उनके लाइफ के बारे में पैंडेमिक के बारे में बहुत सारी कहानियाँ मैंने सुनी. Some of them were really heartbreaking, but उनका जो रहन सहन है, लाइफस्टाइल है, कपड़े पहनने का तरीका, मेकअप कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, it helped me as an actor a lot to build my character. श्वेता, लॉकडाउन की बात की जाए तो आप लॉकडाउन में क्या कर रही थी? फर्स्ट लॉकडाउन में, सेकंड लॉकडाउन में कितनी मुश्किल? फर्स्ट लॉकडाउन में तो आई थिंक यू नो वी आर प्रिविलेज्ड इनफ कि हमारा सिर्फ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि हम काम कब रिज्यूम करेंगे या यू नो मेड नहीं आ रही है, आज खाना बनाएंगे या पोछा लगाएंगे. सो लकीली देयर वाज नॉट रियली अ प्रॉब्लम बट आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस, लॉट ऑफ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट. I read a lot of books, I watched a lot of films. मैंने फिल्म जर्नलिंग शुरू कर दी थी. I had this habit of picking up one filmmaker, one actor और उनकी मैं पूरे हफ्ते फिल्में देखती थी और उन्हें मैं my experience में उसे जर्नल करती थी. I read the Bhagavad Gita, I started a vlog series. So it was great. I think during the second lockdown I think it affected a lot of us. उस दौरान मैंने अपनी एक पेंटिंग ऑक्शन किया था और उसे मैंने डोनेट किया था. It was 100 years of Satyajit Ray and for his birth centenary, being a huge fan and a cinema person, I made a portrait of Satyajit Ray's works and उनका portrait. तो उस पेंटिंग को मैंने ऑक्शन किया था थ्रू माई इंस्टाग्राम एंड उससे मुझे जितनी भी राशि मिली थी वो मैंने कोविड पेशेंट्स, मेडिकली जो भी एसोसिएटेड है और whoever who suffered from the pandemic उन्हें डोनेट किया था. सो दैट वाज माय लिटिल कंट्रीब्यूशन बट आई थिंक जस्ट डू एज मच एज यू कैन whenever one can. तो या दैट वाज माय एक्सपीरियंस फ्रॉम लॉकडाउन. टू बी वेरी ऑनेस्ट, किरदार में जाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन किरदार में जाने के बाद जो एक्सपीरियंसेस पोर्ट्रे करने थे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, हार्ट रेंचिंग थे और उनकी पीड़ा महसूस करके वो एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेनिंग था. और ऐसे किरदार निभाने में मज़ा आता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे किरदार आपको ग्राउंडेड रखते हैं, आपको ग्रेटफुल रखते हैं हमेशा. आपके पास जो भी सुविधाएं हैं आप यू आर ऑलवेज थैंकफुल फॉर देम. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फूलमती ये कैरेक्टर निभाने के बाद मैं ज़्यादा थैंकफुल हूँ जो मैं लाइफ जीती हूँ, जो कंफर्ट्स मैं आज एक्सपीरियंस करती हूँ उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ. और सोसाइटी का एक स्ट्राटा ऐसा भी है जैसी कि मेरी और प्रतीक की कहानी, उनकी ये कहानी लोगों के सामने हम लाने जा रहे हैं और मुझे स्पेशली इस कहानी के बारे में मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत प्राउड हूँ. देखिए, मेरे ख्याल से जिस तरह से जब से ये पोस्टर लॉन्च हुआ है इंडिया लॉकडाउन का, तब से ही लोगों में एक जिज्ञासा जागी है कि ये फिल्म देखना है. बाद में टीज़र आया और ट्रेलर की इतनी प्रशंसा हो रही है. मुझे इस बात की खुशी है कि इंडिया लॉकडाउन को एक फ़िल्म की तरह, माने जिस तरह का एक माहौल हुआ था पूरे विश्व में, उसको हमने कैप्चर करने की कोशिश की कि जो हमारे मुंबई में, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, तो मुंबई में किस तरह से क्या हुआ था, तो मैंने वो कैप्चर किया. मैंने कहा अनेक स्टोरी थी लेकिन हर स्टोरी को हम लोग उसमें नहीं डाल सकते थे फिल्म के माध्यम से. तो हमने कोशिश की कि 4 स्टोरी बताने के लिए. 4 अलग अलग स्टोरी है. एक हमने सेक्स वर्कर के बारे में दिखाया, कामाटीपुरा में श्वेता बासु प्रसाद है. प्रकाश बिलवाड़ी जो है एक बुज़ुर्ग आदमी है, किस तरह वो अपने घर में बैठे, वो जा नहीं सकते अपनी बेटी को मिलने के लिए. और आहना कुबरा जो कैरेक्टर प्ले कर रही है वो एक एरोसिस का कैरेक्टर, जो इतना पायलट का कैरेक्टर, जो इतना वो ट्रैवल करती है, सडनली वो पायलट जो है घर में बैठी हुई है. और प्रतीक और साई तमनकर का जो किरदार है, माइग्रेंट वर्कर्स, जिस तरह से वो लोग चल के गए थे अपने गांव में, तो वो सब चीज़ आपने देखा ट्रेलर में, किस तरह से मैंने इसको निखारने की कोशिश की है. तो ये फिल्म मेरे ख्याल से हर कोई, मैं चाहता था इसको डॉक्यूमेंट करूं, मैं चाहता था कि आने वाली जो जनरेशन है इस पिक्चर को देखे. और बहुत से लोग आज भूल गए हैं 2 साल में कि अरे लॉकडाउन हुआ था क्या आज नहीं, लेकिन ये पिक्चर देखने के बाद एक रिमाइंडर है कि किस तरह से लोग जूझे थे, किस तरह से लोग लड़े थे, जिस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी के, जो कहते हैं ना कि हम हमेशा कहते हैं कि लाइफ कितनी छोटी है, कि कितने अपने लोगों को हमने खोया है, कितने अपने लोगों से हमने कनेक्ट भी किया है, कि हम कितने सालों से बात नहीं करते थे. लेकिन लॉकडाउन एक ऐसा काल था जहाँ पे हमने कई लोगों से हमने फिर से संबंध निभाए, संबंध से फिर से शुरू किया, उनसे मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना.
सिमिलैरिटीज़ हैं क्योंकि वो भी माइग्रेट करके आया था, वो भी बिहार से आया था, बिहार से बम्बई आया था। आई थिंक उसका वो किरदार धोबी का था। ये किरदार आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा ये माइग्रेंट वर्कर है, ये माइग्रेंट वर्कर है ही, लेकिन ये इसका एक्चुअल काम ठेले का है। वो ठेला वाला है, वो रगड़ी बनाता है, रगड़ी पैटिस बनाता है, उसका एक ठेला है। और सिमिलैरिटीज़ काफ़ी थी, लेकिन आई थिंक ये किरदार और ये फिल्म मेरे लिए बहुत ही दिल के करीब रहेगा, ज़िंदगी भर बहुत ही स्पेशल रहेगा। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और फॉर्चुनेट हूँ कि सर ने मुझे ये किरदार ऑफ़र किया, ये फिल्म ऑफ़र की। आई थिंक माइग्रेंट वर्कर की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है, उनके स्ट्रगल्स जानना बहुत ज़रूरी है। हमने ऊपर से सुने हैं, थोड़ा बहुत न्यूज़ में सुना है, देखा है, लेकिन ये काफ़ी गहराइयाँ तक हमें देखने मिलेगा इनकी कहानी, इनकी जर्नी। कितने हार्डशिप्स उनको सहने पड़े, कितनी एंग्स्ट थी, यू नो। आई थिंक ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आई थिंक हमारा देश इतने लोगों अलग अलग लोग और अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं। आई थिंक हमारे especially in India, there's so many different kinds of working classes, and I think